Good morning, students. In previous class, I think I have completed question number 14th. 14th, I have completed. First part I have completed. I told you to complete the second part. Okay, first do the rationalization. After simplifying, then only you can do the derivative. Okay. Next question number 15th. Question number 15. f of x is equal to sec x minus 1 upon sec x plus 1. Find f dash of x and find f dash of pi by 3. F dash of pi by 3. Question is given f of x is equal to root sec x minus 1 upon sec x plus 1. Then we have to find out f dash of x. After finding f dash of x, then we have to find f dash of pi by 3. Okay, first we will be finding the derivative. Before finding derivative, first we have to simplify this function. Okay, some of the questions में हम क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ओके आसान होगा डेरिवेटिव करने के लिए. इसी वजह से हम क्या करना है, पहले हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक, ओके. हाउ टू सिंप्लीफाई ना, sec x is the in place of sec x what I get, reciprocal of sec x is the cos x. Therefore 1 upon cos x minus 1 upon 1 upon cos x plus 1 I can add 2. Reciprocal of sec is cos. So therefore I am writing 1 upon cos x minus 1 upon 1 upon cos x plus 1. Then you can get the LCM. After getting the LCM will be cancelled. What means numerator also LCM will be cos x and denominator also you can see cos x will be getting. So because of that reason cos x get cancelled. So I am writing directly. Okay, if you want you can add one more step. So this can be written as 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Okay, 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Now we have to apply the formula. That is 11th class formula. That's why I told 11th class formula के लिए अच्छे से याद करने के लिए. Here 1 minus cos x form. 1 minus cos theta formula what is that? 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. और फर्स्ट फॉर्मूला इज 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. And the second 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. You can apply this formula. Therefore, root 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. 1 plus cos x, 2 cos square x by 2. 2 get cancelled. Then square value will get cancelled. Why? Because there is a root. Square value and root will get cancelled. We will be getting sin x by 2 upon cos x by 2. ठीक है. Now sin upon cos tan x by 2 is the simplified answer. So far हमने डेरिवेटिव नहीं किया था. ठीक है, अभी तक हम क्या किया था, केवल सिंपलीफाई किया था. ठीक है, गिवन फंक्शन को हमने क्या किया था, सिंपलीफाई किया था. सिंपलीफाई करने के बाद हमको क्या आंसर आया, tan x by 2. अब इसी tan x by 2 को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, हम केवल इसे सिंपलीफाइड वैल्यू का डेरिवेटिव करेगा तो हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा. ठीक क्या, आफ्टर सिंपलीफाइंग we got here f of x is equal to tan x by 2. ठीक, पहले तो a दिया f of x, लेकिन हमने क्या किया था, इसी f of x को मैं सिंपलीफाई किया था. सिंपलीफाई करने के बाद हमको मिला tan x by 2. ठीक,
अब डेरिवेटिव इसको करेंगे तो आसान है, इसको ये तो बहुत लंबा जाएगा, इसे वो सही, इसको करना बहुत आसान है, ठीक, इसे वो सही। एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन सी इफ एनी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इज देयर, then we just reduce it. Reduce means you can simplify, okay, by using some formula you can simplify. After simplifying, for that you can take the derivative easily. f dash of x is equal to tan का फॉर्मूला क्या है, secant square x, x की जगह what is there, x by 2 is there, tan x by 2, ठीक है। x नहीं है, सीधा x होगा तो हमने हमारे पास फॉर्मूला सीधा x होगा तो tan x होगा, फॉर्मूला क्या है, सेकंड स्क्वायर, लेकिन x के साथ अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज व्हाट 1/2। अब क्या करना है, ये वैल्यू x नहीं था लेकिन हम x से माना था, अब कौन सा वैल्यू को हम x से माना तो उसी वैल्यू को दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना है, डेरिवेटिव d by dx होगा x by 2, डिवाइडेड x by 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, d by x by 2 d by dx होगा, इसमें कांस्टेंट 1/2 बाहर लिखेंगे एंड x को करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है d by dx of x का बस 1, ठीक है, 1 into 1/2 करता है 1/2, ये आंसर आएगा 1/2, therefore we can 1/2 multiplies secant square x by 2, this is f dash of x, ठीक, you got it। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, f dash of pi by 3, pi by 3 means how much angle, 60, okay, 180 upon 3 60, so I am writing here f dash of pi by 3 is equal to 1/2 sec inverse of x की जगह में अब रिप्लेस करना पड़ेगा pi by 3, x की जगह में pi by 3, तो pi by 3 अपॉन तो कितना होगा pi by 6, got my point, x की जगह में pi by 3 रिप्लेस करेंगे, उसके नीचे क्या है 2 भी है, दैट मींस pi by 3 अपॉन तो कितना होगा pi by 6, pi by 6 means this is the एंगल कितना होगा 30 डिग्री। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ सेक क्या होगा, cos होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक क्या होगा, cos होगा, एंड cos 30 किसको बराबर है, √3/2, ठीक है, √3/2, cos 30 कितना √3/2, लेकिन रेसिप्रोकल होगा तो क्या लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक, मैं कनेक्ट 1/2 2/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 into 4/3, 2 1 0 2 2 0, 2/3 is the answer, क्लियर। हमने पहले क्या फाइंड आउट किया था, f dash of x, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था, दैट इज f dash of y by 3, so this is the f dash of x, f dash of y by 3 is equal to 2/3, that's the question number which 15। next question, that is the 15th question, next 16th question, question number 16, question number 16 that is important, it's not so difficult, question number 17, y is equal to √x plus 1/√x, then show that 2x dy upon dx plus y is equal to 2√x. Question is given y is equal to √x plus 1 upon √x, then show that 2x multiplies dy upon dx plus y is equal to 2√x. Okay, then dy upon dx पहले फाइंड करेंगे, dy upon dx means a derivative only, dy upon derivative फाइंड करेंगे, dy upon dx। अब √x है, √x को कैसे लिखेंगे, √x is equal to d by dx, अब √x is equal to x over 1/2 plus d by dx होगा, पहले टर्म में √x को कैसे लिखेंगे, x over 1/2
एंड सेकंड टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इज देयर 1 अपॉन रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं x4 माइनस 1 बाई 2 x4 माइनस 1 बाई 2 देख अब इसको डेरिवेट करें तो n मल्टीप्लाइज 1 बाई 2 मल्टीप्लाइज x4 n माइनस 1 means 1 by 2 minus 1 and second term n value is minus 2 x4 n minus 1 1 by 2 minus 1 ठीक अब इसको सिंपलीफाई करें तो 1 by 2 x4 minus 1 by 2 minus 1 by 2 x4 minus 3 by 2 नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 2 root x and this is 1 upon 2 x4 3 by 2 x4 3 by 2 means that x root x also correct. That's my point. 3 by 2 x4 minus 3 by 2 अब वो डिनोमिनेटर में लेके तो x4 plus 3 by 2 आएगा 3 by 2 means that 1.5 means अब ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई होता है अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा सो दिस बोथ आर मल्टीप्लाइंग मींस पावर्स कैन बी एडेड तो पहले x का पावर कितना 1 और दूसरा x का पावर 1 by 2 1 plus 1 by 2 कितना होगा 3 by 2 को बराबर होगा हम सीधा लिख रहे हैं ठीक x4 minus 3 by 2 अब डिनोमिनेटर में लिखिएगा तो x4 plus 3 by 2 आएगा लेकिन x4 3 by 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x root x ठीक है x root x भी आप लिख सकते हैं now this is dy upon x now हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 2x multiples dy upon x that is 1 upon 2 root x minus 1 upon 2x root x plus y means a value of the root x plus 1 upon root x and 2x multiples dy upon x dy upon x a value dy upon x is equal to a 1 upon 2 root x minus 1 upon 2x root x अब इस पे रिप्लेस करके हम देखेंगे ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है हम ये शो कर रहे हैं ठीक है हम एलएचएस साइड रिप्लेस कर रहे हैं 2x dy upon dx प्लस y मींस ऑलरेडी जाएगा तो इसका y रहेगा ठीक रिप्लेस करें तो पहले मल्टीप्लाई करें तो 2 गेट कैंसिल x upon root x आएगा एंड सेकंड टर्म में 2 गेट कैंसिल x गेट कैंसिल 1 upon root x प्लस root x प्लस 1 upon root x अब प्लस 1 upon root x माइनस 1 upon root x गेट कैंसिल अभी क्या बचेगा root x plus root x 2 root x that will show connect and prove that is question number 17 question number 17 now you can write the question number 18 huh? question number 18 you can write yes question number 18 y is equal to 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x root then prove that dy upon dx plus secant square 5 by 4 minus x is equal to 0 given y is equal to root 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x prove that dy upon dx plus secant square 5 by 4 minus x is equal to 0 ठीक हम ये प्रूव करना है ओके अब क्या फाइंड आउट करेंगे dy upon dx हम पहले फाइंड आउट करेंगे dy upon x एंड ये वैल्यू दोनों को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए 0 मतलब है dy upon dx भी ये आंसर आएगा लेकिन माइनस में आएगा देन ओनली इट विल बिकम 0 ये तो ऑलरेडी एक टर्म दिया था और दूसरा टर्म क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा dy upon dx एंड ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है मतलब है दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है एक प्लस और माइनस होना चाहिए ठीक है साइन तो अलग होगा
दैट्स व्हाई आप गेस कर सकते हैं dy अपॉन dx कितना है, dy अपॉन dx आएगा सेम वैल्यू आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। ठीक, अब देखो पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x then minus 2 sin x cos x। वन की जगह में करें cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तो आइडेंटिटी वन की जगह वन बराबर होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये तो फॉर्मूला sin टू थीटा का फॉर्मूला, sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, the denominator 2 sin x cos x। now in denominator so again one is given cos square x plus sin square x minus plus 2 sin x cos x। अब देख a square plus b square minus 2ab, you connect a minus b whole square, that is cos x minus sin x whole square upon this is cos x plus sin x whole square root, so that is we can get cos x minus sin x upon cos x plus sin x। ठीक है, तो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, रूट इज देयर, उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos x minus sin x upon cos x plus sin x। ठीक, अब देख लेना इधर हम क्या करने हैं, डेरिवेटिव। किसको डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड में आएगा tan को, अगर tan नहीं है ना इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे। अब थोड़ा और सिंपलीफाई कैसे करेंगे देखिए, अब ये फंक्शन को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो दोनों में cos x कॉमन ले सकते। ठीक, अब देख लेना इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये आएगा cos x minus sin x upon cos x plus sin x। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा और मॉडिफाई करने के लिए जरूरत क्या है, सिर्फ आंसर देकर बदल सकते हैं। इधर एक टर्म सेकंड स्क्वायर एंड दूसरा टर्म भी सेम टर्म आने से सेकंड स्क्वायर में आना चाहिए। अब किसको डेरिवेटिव करेगा तो सेकंड स्क्वायर आएगा tan को, लेकिन इधर tan नहीं है ना, tan नहीं है तो हम tan में कन्वर्ट करेंगे। tan में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से हम डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड करें cos x upon cos x 1 sin x upon cos x tan x and here 1 plus tan x। ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 1 की जगह में क्या करें, tan 5/4 minus tan x upon 1 plus tan 5/4 multiplies tan x। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 1 की जगह में आप 45 लिख रहे हैं, tan 45 किसको बराबर है, 1 को बराबर है and tan and नीचे डिनोमिनेटर में 1 plus tan x है, हमने क्या लिखा था, tan 5/4 minus tan x। tan 5/4 वैल्यू कितना 1 into tan x का tan x है, इसे और से विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमको tan में फॉर्मूला मिल जाएगा, तो tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। अब देखना इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। एक कौन सा फॉर्म है, tan a minus b का, tan a minus b means tan 5/4 minus x, tan 5/4 minus x। ठीक, अब इसको पूरा सिंपलीफाई करने के बाद a आएगा। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, सिंपलीफाई करने के बाद y वैल्यू आएगा, पूरा फंक्शन को हम सिंपलीफाई करने के बाद आएगा tan of 5/4 minus x। सिंपलीफाई करने के बाद y is equal to tan of 5/4 minus x। ठीक, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, dy upon dx is equal to tan को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर x 5/4 minus x। इधर आप ध्यान से देखेगा तो ये तो x नहीं है, x नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इसको पूरा का x जैसे मानेंगे।
अब tan को करें तो सेकंड स्क्वायर आएगा, लेकिन ये वैल्यू को हमने x जैसे माना था, वो x ने उसको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, d by dx of 5/4 minus x. अब 5/4 इज व्हाट, एक नंबर आएगा, नंबर मींस है कांस्टेंट, कांस्टेंट को कितना 0, और उसको x को करें तो 1, लेकिन x के आगे माइनस है, दैट्स वाई -1. -1 means we get minus secant square 5/4 minus x. This is dy upon dx. लेकिन हम क्या शो करें, तो करें dy upon dx plus dy upon dx plus secant square 5/4 minus x is equal to 0 बराबर शो करें, ठीक. अब ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, कौन सा वैल्यू dy upon dx, कहते हैं dy upon dx minus secant square 5/4 minus x plus secant square 5/4 minus x. एक तो प्लस वैल्यू दूसरा माइनस वैल्यू, देख लीजिएगा ध्यान से, दोनों टर्म्स बराबर है, लेकिन एक तो प्लस वैल्यू दूसरा माइनस वैल्यू. अब क्या कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं. द फाइनल